Some students are raising hand. Is it their way of responding or do they have some query? Srishti. I am Sharp, and we are going to begin now. So, digestion. The very word digestion means to break down. Digestion doesn't just happen inside the body. Digestion can happen even outside the body. People use enzymes all the time to digest something. What does it literally mean? Literally, it is to break down something into smaller pieces. Now, in physiology, when we are studying digestive system, for you to properly get digestion, first you have to understand something about dehydration synthesis. What is dehydration synthesis? All the biomolecules in a living organism, हम सारे जो higher animals हैं, हम में जो भी biomolecules होते हैं, चाहे वो carbohydrates हों, fats हों, proteins हों, सभी biomolecules की जब synthesis होती है, तो वो एक dehydration reaction होता है. आप अगर गौर करें तो मान लें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें HOH हर जगह लगा होता है. ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये O आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर CH2OH हो जाता है. ठीक है, तो ये HOH जो हर जगह लगा होता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल का जब कभी पॉलीमराइजेशन होगा तो इसमें भी HOH होगा. इस HOH में से एक OH और एक H वाटर बन के निकल जाते हैं और तब यहाँ पर बन जाता है एक बॉन्ड जो कोइंसिडेंटली इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स incidentally we call it a glycosidic linkage. Likewise, in case of fats, what happens is that we have सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट ये आपकी वॉइस है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है. स्लो हो गई है? यस सर. इज इट बेटर नाउ? एक बार और बोलिए. हेलो हेलो. ये भी चैट बोल रहे हैं और ये मुझे भी कम ही सुनाई दे रही है. अभी बेहतर आ रही है? अब तो ठीक है. अभी ठीक है? ओके, ठीक है, फाइन, ग्रेट. सो इसी तरीके से जब फैट्स बनते हैं तो ग्लिसरॉल जो कि एक अल्कोहल है उसमें OH होता है, and this alcohol undergoes trans-esterification reaction, you must know, with fatty acid chains which have a carboxylic acid group and long chain of carbon atoms, right? So from this hydrogen and this OH is released. Once that happens, another bond is created over here between this CH2O and C, which is an ester bond, OOR. So this is ROOR. So another hydrolysis, dehydration happened because water molecule was lost from here. Same thing can happen with this one, same thing can happen with this one, which leads to formation of a triglyceride group. You must have studied this in your biomolecules. Likewise, in proteins also, we have already seen in the last class in enzymes, we looked at how proteins are made. In a particular protein, we know that there are amino acids, chains of amino acid, and a particular amino acid has amino group, carbon, a variable group, hydrogen, and a carboxylic acid group, right? And two consecutive amino acids can lose water molecule. This OH is going to be lost with the H of the next amino acid, amino end of that next amino acid. This is going to be lost as water, leading to formation of a new bond, which is the polypeptide bond, CONH, right? So once again, water was lost. So when the biosynthesis of macromolecules, itself
involves dehydration. What does this mean? That their breakdown will require hydrolysis, which means you add water, you provide the proper enzymes, and these macromolecules which are consumed as food are going to be broken down into their smaller components. So practically digestion, एक word में अगर digestion की definition दी जाए तो digestion is the process of hydrolysis. सिर्फ इतना ही करना है, पर इसी को करने के लिए हमें बहुत तरीके के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं. सिस्टम्स, लिविंग सिस्टम्स बहुत जुगाड़ लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, because each one of them has a different mode of nutrition, which brings us to the next topic, the modes of nutrition. You must have studied this in your school or maybe in your module or Vidya Mandri classes में ही किया होगा. Holozoic nutrition is the mode of nutrition in which an organism is consuming whole chunks of food from outside, eating it up, basically eating once. Okay, जो बाहर से खाते हैं, अंदर लेते हैं बॉडी के और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. हर्बीवोरस वो जो वेजिटेरियन है, हर्ब्स खाते हैं. कार्निवोरस वो जो एनिमल्स को खाते हैं. ऑमनिवोरस वो जो दोनों खाते हैं. इंसेक्टिवोरस वो जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. फ्रूगीवोरस वो जो फ्रूट्स पे फीड करते हैं, जैसे बैट्स, ठीक है, एंड मेल मॉस्किटोज, दे आर ऑल फ्रूगीवोरस. सैंग्विवोरस वो जो ब्लड, खून पीते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं, जैसे वैम्पायर बैट्स हुए या लीच हुए, ये ऑर्गेनिजम्स को सैंग्विवोरस बोलते हैं. या मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो हुई. डेट्रिटिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो डेट्रिटस पे फीड करते हैं. व्हाट इज डेट्रिटस? डेट्रिटस इज द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग टिश्यूज व्हिच इज मिक्स्ड इन द सॉइल. तो वहां पर एक अलग ही पूरा उसका इकोसिस्टम चल रहा होता है, वहां पे डेट्रिटिवोर्स होते हैं. ठीक है. लार्विवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ लार्वा पर फीड करते हैं, जैसे एक फिश होती है गंबूसिया फिश, ये बहुत चाव से क्यूलेक्स के लार्वे को खाती है. वो एक्सक्लूसिवली लार्वे को खाने वाले भी कुछ एनिमल्स होते हैं, सिर्फ लार्वा पे फीड करते हैं. कॉप्रोफेगस एनिमल्स वो होते हैं जो हु ईट फीकल मैटर, अपना खुद का. ठीक है. ये कुछ रोडेंट्स वगैरह में, रैबिट वगैरह में, जैसे फॉर इंस्टेंस ऐसा केस होता है कि उनके जो पहली बार डाइजेशन के बाद जो फीकल मैटर निकलता है वो फुल्ली डाइजेस्टेड नहीं होता है, तो वो उसको वापस से खा लेते हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा से डाइजेस्ट होता है, तब उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, बिकॉज नेचर ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट बिट ऑफ एनर्जी पॉसिबल. ओके. Then cannibalism is the phenomenon whereby individuals of one species eat other individuals of the same species. ठीक है. So human beings, prehistoric human beings also used to show cannibalism. There were human groups which would kill other human beings and eat them up. Today we don't do it. Fortunately, we have become more civilized. But there are animal species which show cannibalism. For instance, spiders show cannibalism, scorpions show cannibalism. You will never find two scorpions together. If you find two scorpions together, it will be either for the sake of mating, male and female, or one would be eating the other. Even after mating, the female eats up the male. In case of scorpions, female male को खा जाती है, बड़ी होती है साइज में, तो रिप्रोडक्शन के जस्ट बाद वो मेल को तोड़ के टुकड़े टुकड़े में खा जाती है. हालांकि उसका मुंह भी इतना बड़ा नहीं होता है कि वो चबा भी सके, वो बेसिकली जूस निकाल लेती हैं, अपनी पिंसर से पकड़ के उसको स्क्वीज आउट करके पूरी टिश्यूज की खत्म कर देती हैं. Then filter feeders are those animals which feed by filtering things. One of the largest, not one of the largest animal on the planet, whales. So scorpions यहाँ पे हैं. कॉप्रोफेगस बता दिया मैंने. वेल जैसा एनिमल्स जैसे जो होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस क्या करती है वेल की, इसके माउथ के अंदर, मुंह में, ये एक म्यूकस का पूरा वो बनाती है, कप जैसा स्ट्रक्चर, बड़ा सा फनल, और इसमें जब वो तैरती जाती है तो जितने प्लैंक्टन्स होते हैं वो फिल्टर होते जाते हैं और फाइनली वो उस कप के साथ उन सारे प्लैंक्टन्स को भी खा जाती है एक साथ विद द कप. ठीक है. इन्हें कहते हैं फिल्टर फीडर्स. हाँ जी मैम. आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा लो आ रही है. अभी भी लो आ रही है? हाँ, यस सर.
और कुछ बच्चे तो चैटिंग में बोल रहे हैं कि यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट ऑडिबल। अभी मैं क्या बताऊं? एक और बोल रही है। फर्स्ट आई हैड ईयरफोन्स, आई गेस ईयरफोन्स से प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने वो भी निकाल दिया। आई हैव केप्ट इट वेरी क्लोज टू माय फेस आल्सो। लेट मी ट्राई अनदर ईयरफोन, लेट्स सी। Is it a bit better now? हेलो, ये तरफ से तो अभी भी कम ही लग रही है मुझे। ये भी कमी है। हाँ। I guess then there must be something with the network. Probably network तो पूरा दिखा रहा है। बच्चे कह रहे हैं you are audible, पहले अच्छा था, अभी कह रहे हैं सही है आवाज। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है ऑडिबल। तो हो सकता है फिर बच्चों के एंड से कुछ हो। नहीं, बट मेरे की तरफ मुझे भी कम ही सुनाई दे रही है वैसे। I have no clue, madam, what is happening and why it is happening. What I can do is to speak more loudly. If I speak this loud, is it okay? Yes, that's Okay, fine. So I'll just assume that I'm giving a lecture in a lecture hall without microphones. That is fine. वैसे Okay, रिकॉर्डिंग भी so- हो रही है, सो अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो रिकॉर्डिंग में भी सुन लेंगे। जी बिल्कुल। सो ये तो हुए सारे पॉसिबल टाइप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, जिसमें बाहर से खाया जाता है, अंदर लिया जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है इनसाइड द बॉडी, राइट? नाउ व्हेन वी गो फॉर नेक्स्ट टाइप इज सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपनी बॉडी के बाहर सिक्रीट करते हैं और वहीं पर उन्हें डाइजेस्ट करके डाइजेस्टेड मटेरियल को अंदर फिर खा लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई क्या करती है? ये जिस चीज पर बैठती है, कभी गौर करना, बैठ करके ऑब्जर्व करना। मक्खी मार रहे हो, कहते हैं ना जब बोर होते हैं तो मक्खी मारते हैं, मक्खी मारना मत, बैठ करके उसको देखना। उसके माउथ के नीचे से अगर इस तरह से मक्खी बैठी होती है तो उसके माउथ में से ऐसा एक पिस्टन जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। ये स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। डिप्टेरा ग्रुप जो है, डिप्टेरेंस में होता है ये। तो ये क्या करता है कि जिस चीज पर ये बैठा होता है खाने की चीज पर, वो वहां पर अपना सलाइवा वहीं पर थूक देता है बाहर और फिर वहीं पर उसका डाइजेशन होता है और जो जूस होता है डाइजेस्टेड, उसका काइम कह लो, वो सारे को इसी स्पंजिंग माउथ पार्ट से सक कर लेता है। जैसे स्पंज लगाते हैं ना, स्पंज को लगाओ तो फिर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जस्ट लाइक दैट ये भी काम करता है। सो नेक्स्ट टाइम किसी हलवाई की दुकान पे अगर आपको मक्खी बैठी दिख जाए तो प्लीज फॉर गॉड सेक वो मिठाई मत खाना। उस पे मक्खी ने अपनी निशानियां छोड़ रखी होती हैं जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो फंजाई करती हैं। हालांकि थियोरेटिकली एसेंशियली प्रोसेस वहां भी सेम है, वो भी बाहर सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, डाइजेस्ट होता है और फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। Now, mixotrophic nutrition is a nutrition in which is kind of a reconciliation between autotrophic and heterotrophic nutrition. Autotrophic और heterotrophic nutrition के बीच का ये nutrition होता है। Autotrophic वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, heterotrophic वो जो दूसरे से लेते हैं, दूसरे के बनाए हुए को या दूसरे कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स दोनों होते हैं। आई सपोज आपको ये चीज पता होगी। फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को यूज करते हैं फूड को सिंथेसाइज करने में, बायोसिंथेसिस में बायोमोलिक्यूल्स की। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कुछ केमिकल्स को तोड़ के उनकी एनर्जी को यूज करते हैं, जो उनकी बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करते हैं दूसरे कंपाउंड्स अपने फायदे के कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो हेट्रोट्रॉफिक तो वो है जो बना बनाया खाते हैं, सारे जो ऊपर हमने होलोजोइक और तमाम देखे हैं, सैप्रोजोइक, ये सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रॉफिक एनिमल्स वो होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो ये दोनों कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा भाई है जिसको लेकर के बॉटनिस्ट और जोलॉजिस्ट दोनों लड़ते रहते हैं, क्योंकि यूग्लिना को अगर लाइट मिलती है तो वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, और अगर लाइट नहीं मिलती है तो वो हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। तो जोलॉजिस्ट बोलते हैं नहीं ये हमारा एनिमल है, बॉटनिस्ट बोलते हैं नहीं ये हमारा प्लांट है। यूग्लिना को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, वो अपनी जिंदगी मस्ती से जी रहा है।
बट हम ह्यूमंस को, साइंटिस्ट को इस चीज की बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। नाउ then we come to parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition is the one in which one organism is not eating up the other organism fully. ये नहीं कि खा करके खत्म कर दिया, वो थोड़ा थोड़ा उसका खून पीता रहेगा, थोड़ा थोड़ा लेता रहेगा, थोड़ा थोड़ा लेगा, उसको मारेगा नहीं कभी पूरा। प्रीडेटर नहीं होता है ये, ठीक है। तो वो पैरासिटिक होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता होंगे। एंडोपैरासाइट्स अलग होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स अलग होते हैं। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप में या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें एक एग्रीमेंट है पैरासाइट और होस्ट के बीच में कि भाई मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर मैं तुम्हारा खून पीता रहूंगा, ना तुम्हें ढंग से जीने दूंगा, ना तुम्हें ढंग से मरने दूंगा। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो आप सभी लोग अपने अपने माँ बाप के ऊपर अभी पैरासाइट ही हो, अभी उनका खून ही पी रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। उनको कोई फायदा नहीं है तुमसे, तुम ही फायदा उठा रहे हो उनसे। इसको बोलते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फिफ्थ टाइप ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप इज सिम्बायोटिक, जिसमें दो मेंबर्स हैं और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक से दूसरा न्यूट्रिशन ही ड्रॉ कर रहा हो, कोई भी फायदा ड्रॉ कर सकता है। उस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। Now we come to the details of holozoic nutrition because human beings have holozoic nutrition. Holozoic nutrition 5 stages में होता है: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. I suppose by plain common sense you would be able to figure this out. लेकिन जो चीज ध्यान देने की है, ह्यूमंस के लिए तो खैर हम देखेंगे ही, बाकी एनिमल्स के लिए भी इन 5 चीजों को करने के लिए दुनिया के तमाम एनिमल्स ने तमाम तरीके के अपने अंदर मॉडिफिकेशंस और एडेप्टेशंस कर रखे हैं जस्ट टू मेक दीज थिंग्स हैपन। और उसी की वजह से उनमें इतनी नाना प्रकार की विविधता, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो पैदा होती है। इंजेक्शन के मैकेनिज्म सबके अलग अलग हो सकते हैं, डाइजेशन के मैकेनिज्म सबके अलग अलग होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होंगे, एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म अलग होंगे, बट फेनोमेनन सब में सेम रहेगा। Ingestion will be taking in the food material, taking it in, input of organic material. Digestion will always involve breakdown and it will always require enzymes, because enzymes are the ones which do everything in living system. Absorption of the broken simpler components, ठीक। एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद डेपोजिशन और एसिमिलेशन इनटू लिविंग टिश्यू, डेपोजिशन इन बॉडी। और इजेशन का मतलब हुआ थ्रोइंग आउट द वेस्ट, थ्रोइंग आउट अनयूजेबल वेस्ट। ये 5 स्टेप्स इन एसेंस सब में होंगे, पर ये फंक्शंस करने के लिए स्ट्रक्चर सबके अलग अलग हो सकते हैं। All right, so now coming to human digestive system, quickly we are gonna go through the anatomy and as far as possible साथ में अपन physiology भी देखते जाएंगे। I have to rush through this guys, I'm really sorry about this, क्योंकि 1.5 घंटे में digestive system पढ़ाना in itself is a challenge, but because this is a crash course, so I'm assuming that you guys have already read something about it. Okay, this is supposed to give you a heads up, a kind of a revision for your upcoming exams. Okay, now human digestive system की anatomy और physiology हम दोनों देखेंगे। तो पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। उसके पहले एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा रखिएगा कि सारे हायर एनिमल्स, which means from Coelenterata onwards, all animals show tube within tube structural organization. Tube within tube structural organization. इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सारे बाइलैटेरिया के जो मेंबर्स हैं, बाइलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, वो सब ऐसे लंबे से होंगे, इन कंट्रास्ट विथ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो गोल होते हैं। इन सभी एनिमल्स में जो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें 2 ही कैटेगरीज हैं। एक सीलेंट्रेट्स की कैटेगरी है जिसमें कि उनका एक तरफ से एक ओपनिंग बनती है जो माउथ की है और वो टर्मिनेट कर जाती है ब्लाइंडली। इसी को हम बोलते हैं उनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रिक कैविटी या सिलेंटरॉन। एक ही कैविटी है, यहाँ पर माउथ है और ये सिलेंटरॉन है। ये ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है,
This is called blind sac organization. This is present in coelentrates, coelenterata. ओके लेकिन जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि ये जो ब्लाइंड एंड है ये दूसरे वाले छोर से मिल जाता है और यहां पर भी एक ओपनिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, दिस इज कॉल्ड ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ठीक है। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये जब बनता है तो इसमें एक एंड तो ये वाला माउथ था, दूसरा एंड फिर बन जाता है एनस का, ठीक है। ये मुझे इस डायग्राम में नहीं बनाना चाहिए, ये ब्लाइंड सैक वाला है। तो उसमें क्या होगा कि एक माउथ है और दूसरी तरफ एनस है, ये एक ट्यूब होगी पूरी, और पूरी बॉडी भी सिलेंड्रिकल सी ही है। इसमें वेरिएशन होगा, उसकी अपनी अपनी शेप्स होंगी, अलग अलग होंगी, बट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये है जस्ट लाइक अ बॉल पेन जो खुद में सिलेंड्रिकल है और उसके अंदर एक और रिफिल लगी हुई है, तो दो सिलेंडर विद इन अ सिलेंडर है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ प्रोटोस्टोमिया, बायलैटेरिया में एक ग्रुप होता है प्रोटोस्टोमिया, उसमें माउथ जो है दिस इज फॉर्म्ड बाय ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर आपको पता होगा, जब ब्लास्टुला बनता है तो ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला बनने लगता है इन्वाजिनेशन के बाद, तो यहाँ पे एक ओपनिंग रह जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर, और ये बन जाता है फिर आर्केंटेरॉन और ये बनता है ब्लास्टोपोर। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोलॉजी में उसका जो ब्लास्टुला है उसके ब्लास्टोपोर ने माउथ बनाया तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कि प्रोटोस्टोम है या प्रोटोस्टोमिया का मेंबर है। तो जो लोअर एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वो सब प्रोटोस्टोमिया में आते हैं, उनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है और एनस बनाता है। एनस इज डेवलप्ड लेटर ऑन एज अ सेकेंडरी ओपनिंग ऑन द अदर एंड, इस तरफ बनेगा, ठीक है। इन फ्यूचर जब जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा फाइनली जाकर के इस तरफ बन जाएगा। इसी के साथ जो दूसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ड्यूटरोस्टोमिया, ड्यूटरोस्टोमिया में क्या होता है, ब्लास्टोपोर विल फॉर्म एनस, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो कि अगर किसी एनिमल में एक तरफ इधर अगर माउथ बन रहा है तो दूसरी तरफ एनस बनेगा, अगर इधर एनस बन रहा है तो दूसरी तरफ माउथ बनेगा, तो बेसिकली पूरा ओरिएंटेशन ही उल्टा हो गया। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन दोनों का ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, लेकिन ओरिएंटेशन अपसाइड डाउन हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जाने रहिए। सो ह्यूमन बीइंग्स have tube within tube structure and it has been modified in immense ways, but in essence it is still is one tube inside another cylindrical body. So this tube has become very long, has become modified in different regions for different purposes. It begins with the mouth and ends in the anus, right? So let us check out what all organs are there. So you have the buccal cavity, which is the mouth or oral cavity. Inside the buccal cavity you have tongue, you have salivary glands, the sublingual gland, the submandibular gland and the parotid gland. And from the oral cavity there is hard palate in front on the anterior side, hard palate on this side, and then soft palate on the posterior side, ठीक है। आप अपने मुंह में भी देख सकते हो, उंगली ऐसे घुसा करके देखोगे, ऊपर जो तालू का रीजन है वो पहले हार्ड होता है, पीछे जाके सॉफ्ट हो जाता है, यहाँ पर कार्टिलेज होता है, जो सॉफ्ट पैलेट है ये रीजन यहाँ पर कार्टिलेज होता है, ठीक है। सो नाउ दिस जॉइंस द pharynx which is coming from the nasal cavity, the nasopharynx, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर ओवरलैप करता है, क्रॉस करता है एक दूसरे को इन केस ऑफ pharynx, ठीक है। एंड देन द माउथ और द ओरल कैविटी कंटिन्यूज एज द ईसोफेगस। ईसोफेगस इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया, ये ध्यान रखना, आपके सीने में आगे की तरफ रिब्स से सटा हुआ ट्रैकिया है और उसके पीछे की तरफ ईसोफेगस है, ठीक है। दिस ईसोफेगस विल डेफिनेटली कंटिन्यू इनटू द स्टमक which continues through a U-shaped tube called the duodenum into the other parts of small intestine, the jejunum and the final terminal ileum. That ileum opens up into the large intestine or the colon through cecum. Colon goes through ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and then terminates into rectum and anus. But if you notice, this is all of this is one continuous long tube, one continuous long tube, ठीक है। I'm not going to tell you all the fact file that is available to you in your module. We are going to talk about concept. We are going to run through the concept and revise this whole thing. Okay. So let us begin with the oral cavity or the buccal cavity. Now in the buccal cavity of human beings,
there is one pair of lips which are called vestibule. Okay, there is an upper lip or a superior vestibule and lower lip or a inferior vestibule. Vestibules are also called labia. Okay, जहां कहीं भी होठ जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं वहां पे लेबियम या वेस्टिब्यूल जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है. अपर लिप में बीचों बीच में एक ऐसा मेम्ब्रेनस सा फोल्ड होता है जिसे कहते हैं फ्रेन्युलम. दिस इज द फ्रेन्युलम. Okay, and in the lower lip also there is an inferior labial frenulum. All right, the gums are called gingivae. Okay, and just below the tongue is another frenulum called lingual frenulum, which attaches the tongue to the base of the oral cavity. All right, just below the tongue there are openings of the salivary gland ducts, which are called salivary duct orifices. There is an opening of the sublingual gland, there is an opening of the submandibular gland, जिसको पहले submaxillary कहा जाता था, अब उसे submandibular भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. The oral cavity continues on the posterior side. It continues, the tongue continues into a palatine tonsil. Tongue के भी पिछले पार्ट पे tonsils होते हैं. Tonsils are basically organs of immune system. मोटे तौर पे अभी इतना जान लें, organs of immune system. ठीक है, चूंकि बाहर से आप खाना खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत पैथोजेंस हो सकते हैं, तो ये एंट्री पॉइंट बड़ा वल्नरेबल है किसी भी इंफेक्शन के लिए. इसलिए यहाँ पर तुरंत ही हमने अपने सोल्जर्स बैठा करके रखे हुए हैं. नाउ द रूफ ऑफ द बकल कैविटी हैज uvula, which is this bell shaped structure. ये ऐसे झूल रहा होता है. खाना आपके शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करने के पहले ऐसे घंटा बजा करके लाइक दैट, इस तरह से मैंने इसको याद किया था कि दिस इज लाइक अ बेल शेप्ड स्ट्रक्चर. वो घंटी बजा करके अंदर एंट्री मारता है कि चलो अब हम इनके शरीर के अंदर जा रहे हैं. ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन होता है. ये भी लिम्फॉइड होता है. इसके अलावा यहाँ पर दो टॉन्सिल्स होते हैं जिनमें जब आपके गले में इन्फेक्शन होता है तो ये बड़े बड़े हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं. गले में जो दर्द होता है वो इसी की वजह से होता है. टंग के पोस्टीरियर पार्ट में भी टॉन्सिल्स के टिश्यूज होते हैं. ठीक है. नाउ फर्दर, beta, you don't have to raise hand. If you have a question, send it in the chat. We will look at it later on. तो अब हम माउथ में जो भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनका अगर डिटेल देखना चाहें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. But you don't need to bother yourself with all those structures. You will go crazy. All you need to know is something about the teeth, about the salivary glands, this one, and this one. Okay, these three are salivary glands. ये parotid gland है सबसे ऊपर वाला, ये जबान के जस्ट नीचे वाला ये सबलिंगुअल है, और उसके नीचे वाला सबमैंडिबुलर, ये वाला सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी जिसे बोला जाता है वो वाला है, दिस वन. ठीक है, so this is submaxillary या sublingual, submandibular, submaxillary और submandibular gland इसको बोला जाता है. ठीक है, ये वाला पैरोटिड है सबसे ऊपर वाला, सबसे बड़ा यही होता है, और उसके बाद ये सब लिंगुअल है, जबान के नीचे होता है जो, उसे सब लिंगुअल कहते हैं. वो लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक दूसरे से जुड़ा होता है. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी मसल्स होती हैं. जो माइलोहायोइड मसल होती है, ये मसल टंग को कनेक्ट करती है बॉटम ऑफ द ओरल कैविटी से, जहां पर फिर फर्दर डाइगैस्ट्रिक मसल्स और स्टाइलोहायोइड मसल्स उसको ट्रैकिया के जो आपका लैरिंग्स के जो कार्टिलेजेस हैं उसके साथ जोड़ती है. किसी डायरेक्टली किसी बोन के साथ टंग नहीं जुड़ी होती है. टंग इज अ skeletal muscle and it is the only skeletal muscle which is not attached directly to any bone. skeletal muscle है मतलब आप उसको willfully कंट्रोल करते हैं. साइंटिफिकली स्पीकिंग बहुत से लोगों का उस पर कंट्रोल नहीं होता है अपनी जुबान पे. metaphorically speaking, scientifically speaking, it is a muscle that you willfully control. Okay, सारी मसल्स जो आपकी विलफुल कंट्रोल में होती है वो किसी ना किसी बोन से आर्टिकुलेटेड होती हैं, एक्सेप्ट फॉर टंग. Tongue is not articulated directly to any bone, and it is one of those muscles which has maximum nervous connections, so that it is possible for us to move our tongue in different possible ways for mastication and for speaking, simply because there is a lot of nervous connection to it. Okay, that gives us a lot of control. Now talking about the teeth, organs of mastication, biting and mastication,
कहते हैं 32 दांत होते हैं, सभी में नहीं होते हैं, जस्ट सो यू नो। एक बच्चा एक बार बड़ा टेंशन में आ गया, सर मैंने अपने घर पे जाके गिने, मेरे तो 32 दांत ही नहीं है सर, मेरे में कोई कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, ये एज के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो डाइफायोडोंट एनिमल्स होते हैं, डाइफायोडोंट का मतलब क्या हुआ? जिनमें 2 बार टीथ आते हैं, ठीक है। डाइफायोडोंट, एक बार मिल्क टीथ आएंगे और एक बार परमानेंट टीथ आएंगे। जो परमानेंट टीथ होते हैं उनको आते आते वक्त लगता है, सबसे पीछे के जो 3rd मोलर्स होते हैं ये बहुत ही टाइम ले लेते हैं आने में, जब ये निकलते हैं बहुत पेनफुल होता है, इसको विजडम टूथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो टीथ हैं, इंसाइजर्स, यहाँ पर एक पेयर, सॉरी दिस वन एंड दिस वन, followed by canines, followed by first premolar, followed by second premolar, followed by first molar, followed by second molar, followed by third molar। तो इस तरह से देखा जाए, अगर पूरे जबड़े को इस तरह से क्रॉस कर दिया जाए तो अपर जॉ और लोअर जॉ में हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर 2 इंसाइजर्स हैं, यहाँ पर भी नीचे भी 2 इंसाइजर्स हैं, यहाँ पर एक कैनाइन है, यहाँ पर एक कैनाइन है, यहाँ पर 2 इंसाइजर है, यहाँ पर एक कैनाइन है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है? बोलते हैं कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला जो है वो हो जाता है 2/2, ओके। इधर फिर 1/1 फॉलोड बाय 2/2 फॉलोड बाय 3/3, और फिर राइट में हो जाता है 2/2, अगेन 1/1, अगेन 2/2, अगेन 3/3। This becomes the dental formula of human beings, okay। Dentition in mammals in itself is a big topic। You have diaphyodont के अलावा और भी बहुत characterizing features teeth के बताए जाते हैं, जो I'm assuming कि आपने पढ़े होंगे। Thecodont teeth होते हैं, acrodont teeth होते हैं, pleurodont teeth होते हैं, ये तमाम जो हैं ये these are about where is the teeth articulated on the gum, ओके। सो अगर किसी में गम के ऊपर इस तरीके से टीथ लगा होता है, टॉप पर ऐसे ऊपर से आर्च करके, तो ये पीक पे लगा हुआ है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में ऐसे थीका बना होता है, एक खड्डा बना होता है जिसमें टीथ लॉज्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थीकोडोंट। अगर टिप पे बना होता है तो इसको बोलते हैं एक्रोडोंट। अगर पूरा नहीं हुआ ये प्रोसेस, मतलब क्या कि मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं एक बार। एक हो सकता है कि सरफेस पे टीथ इस तरह से लग गया, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्रोडोंट। एक हो सकता है कि जबड़े में, बोन में एक खड्डा बन गया और इस खड्डे में टीथ लॉज्ड है इस तरह से, ठीक है, इसे बोलते हैं थीकोडोंट। तो ये एक्रोडोंट हो गया, ये थीकोडोंट हो गया। और इनके बीच की एक स्टेज होती है जिसमें पूरा नहीं बना होता, इस तरीके से शेल्फ सा बन जाता है और इस शेल्फ के ऊपर टीथ लगा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लूरोडोंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपके मॉड्यूल में दी हुई हैं, आई सपोज आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो उसको प्लीज पढ़िए, अच्छी तरीके से दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट क्लास में। नाउ गोइंग फर्दर ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। एक टूथ के अंदर क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा ह्यूमन टूथ इज थीकोडोंट, तो हमारे में ये एक खड्डा बना हुआ है जिसके अंदर टीथ लॉज्ड है। इस टीथ में सबसे बाहर जो लेयर है वो एनामेल की है। इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी में एनामेल से ज्यादा टफ कोई चीज नहीं है, कोई सी टिश्यू नहीं है, ठीक है। दिस एनामेल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डेंटाइन which is followed by a pulp cavity जिसमें blood vessels, blood और nerves होती हैं, ठीक है। इससे ये जहां अंदर खड्डे में जो जाता है जिसे रूट कैनाल कहा जाता है, रूट ऑफ द टूथ कहा जाता है। जब आप आरसीटी कराते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो उसमें बेसिकली इस टिश्यू को मार देते हैं डॉक्टर जो होते हैं, डेंटिस्ट, दे डिस्ट्रॉय दिस टिश्यू, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो जाने पर वो पेन होता है और वो इन्फेक्शन यहाँ बोन में आ सकता है, ठीक है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते वक्त ये चीज की जाती है। नाउ इसका जो सबसे टॉप वाला पार्ट है जहां पर एनामेल होता है, इसको क्राउन कहा जाता है, और जो पार्ट अंदर घुसा होता है गम्स के अंदर उसे कहते हैं नेक। सो क्राउन, नेक एंड रूट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन टूथ। अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ ही पूछ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द टंग। अब टंग का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो पहले मैंने बताया टंग एक स्केलेटल मसल है।
टंग के ऊपर तमाम तरीके के रेज्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन्हें पैपिली कहा जाता है। ठीक है, ये पैपिली 4 तरीके के हो सकते हैं, फिलीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेट और फंगीफॉर्म। ठीक है, फोलिएट पैपिली जो होता है ये ह्यूमन बीइंग्स में बहुत अनकॉमन होता है, बहुत बहुत रेयरली मिलता है, मोस्टली नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिली, सर्कमवैलेट पैपिली और फंगीफॉर्म पैपिली मिलते हैं, जिनमें से टेस्ट बड्स सबसे ज्यादा कॉमनली फंगीफॉर्म पैपिली के ऊपर मिलते हैं। टेस्ट बड क्या होते हैं? टेस्ट बड्स आर दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर गस्टेटोसेप्शन। गस्टेटोसेप्शन, गस्टेटोसेप्शन इज द टेक्निकल टर्म फॉर स्वाद लेना। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर फिलीफॉर्म पैपिली सरफेस पर हैं, फंगीफॉर्म पैपिली उनके बीच में साथ में इंटरमिंगल्ड हैं। फोलिएट पैपिली जब कभी होते हैं यहाँ साइड में पाए जाते हैं, टंग के एजेस पर पाए जाते हैं इस तरफ। ठीक है, सर्कमवैलेट पैपिली पीछे की तरफ एक वी शेप में स्ट्रक्चर होता है, इसके पास यहां पर मिलते हैं सर्कमवैलेट पैपिली। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अगर आप देखना चाहें कि इनके अंदर और क्या क्या होता है, इनके अंदर आपके लिंगुअल पैपिली के अंदर गस्टेटोसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फंगीफॉर्म पैपिला जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इसका रेज्ड प्लेटफॉर्म टॉप पे जो होता है वो गोलाई लिए होता है। ठीक है, फाइलीफॉर्म पैपिला इस तरीके का दिखता है, शार्प एजेस होती हैं, इसमें पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमें बहुत कम पाया जाता है, लेकिन कैट्स वगैरह में या कार्निवोर्स जो होते हैं उनकी जबान अगर आप देखोगे, अगर आपने किसी ने बिल्ली पाली हो, अगर वो चाटती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रफ उनकी टंग लगती है, क्योंकि ये वाला पैपिला उनमें बहुत ज्यादा होता है। दिस हेल्प्स देम इन टीयरिंग और क्लीनिंग अप द फ्लैश फ्रॉम द बोन। ठीक है, हम लोगों में ये बहुत ज्यादा संख्या में, और या इसका जो इंडेंटेशन है ये बड़ा लंबा या ऐसा पॉइंटेड नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट खत्म ही है, पर फिर भी पाया जाता है और बहुत छोटा होता है। ठीक है, फोलिएट पैपिला जो है ये लीफ लाइक पैपिला होता है। ठीक है, ये इनके अंदर जो टेस्ट बड्स हैं वो बेसिकली एक बेसल सेल होगी, एक गस्टेटरी सेल होगी और एक ट्रांजिशनल सेल होगी। ये 3 तरीके की सेल्स बोली जाती हैं, पर इनके सरफेस पर पोर्स होते हैं, जिन पोर्स से कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब आता है तो ये एक टाइप ऑफ कीमोसेप्शन है। गस्टेटोसेप्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कीमोसेप्शन, केमिकल को सेंस करने की काबिलियत। आपका ओल्फैक्शन भी एक टाइप ऑफ कीमोसेप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से गस्टेटोसेप्शन भी एक टाइप ऑफ कीमोसेप्शन है। ठीक है, हम उसे खुशबू या बदबू या स्वाद बोलते हैं, पर नेचर में स्वाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज हाउ योर ब्रेन इंटरप्रेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम और अदर केमिकल्स। ठीक है, तो ये जो टेस्ट पोर्स होते हैं, यहां से कोई भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस जब थोड़ा थोड़ा अंदर आता है तो ये उसको सेंस कर लेती हैं ये सेल्स, और इनकी जो बेसल सेल है वो बेसिकली एक नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, बेसल सेल जो है ये एक नर्व एंडिंग होती है जो मैसेज को लेकर के ब्रेन को पहुंचा देती है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल सेल्स जो होती हैं ये सेंस करती हैं एक्चुअली, और इनके साइटोप्लाज्म में चेंज आता, सॉरी गस्टेटरी सेल्स जो होती हैं ये सेंस करती हैं, इनके साइटोप्लाज्म में चेंज आता है। इनको मैसेज कौन देता है? ट्रांजिशनल सेल। ट्रांजिशनल सेल बाहर से लेती है केमिकल को, उस मैसेज को ट्रांसम्यूटेट करती है, ट्रांसड्यूस करती है अपने साइटोप्लाज्म में, और वहां से वो मैसेज ट्रांसफर करती है गस्टेटरी सेल को। गस्टेटरी सेल फिर उस मैसेज को ट्रांसफर करती है बेसल सेल को, और बेसल सेल फिर वहां पे नर्व एंडिंग है वो लेकर के मैसेज चली जाती है। दिस इज हाउ टेस्ट बड्स वर्क। ओके, इन जनरल ये मैं तुम्हें बहुत बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे देखोगे अगर रियलिटी में माइक्रोस्कोप में तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये वाला इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप उसको बड़ा करके देखोगे एक पर्टिकुलर पैपिला को, तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर केस में सर्कमवैलेट पैपिला को दिखाया गया है, वी शेप्ड ये होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, टॉप सर्कुलर होता है, बेस इनका वी शेप्ड होता है। देखो इस डायग्राम में देखोगे इस तरीके का सा स्ट्रक्चर इनका आता है। ठीक है, इसलिए इनको सर्कमवैलेट पैपिला कहते हैं। मूविंग ऑन, आपकी जबान पे पॉसिबल जो टेस्ट होते हैं, हर एक टेस्ट बड एक खास तरीके का टेस्ट लेगा। एक टेस्ट बड एक से ज्यादा टाइप का टेस्ट नहीं लेता है यूजुअली। ठीक है, तो खास खास टेस्ट जो है वो आपकी जबान के खास खास रीजन्स में सेंस होते हैं। स्वीट टेस्ट के लिए जो टेस्ट बड्स हैं वो आगे वाले टिप के पास होते हैं। सॉल्टी के लिए इस पूरे रीजन के उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सार के लिए साइड में होते हैं।
बिटर के लिए पीछे होते हैं। और एक फिफ्थ टेस्ट लेटेस्ट जो डिस्कवर हुआ है उसे कहते हैं उमामी। नाउ उमामी और यूमामी, व्हाटएवर वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट, दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ मीट ब्रॉथ। मीट ब्रॉथ का एक अलग ही टेस्ट होता है, ये ग्लूटामेट की वजह से होता है। ग्लूटामेट अमीनो एसिड का जो एक मेटालिक सा टेस्ट आता है उसे उमामी टेस्ट कहा जाता है। ये पांचवें टाइप का टेस्ट है, ये बहुत लेट से अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ है, कुछ साल पहले ही, वरना फंडामेंटल टेस्ट 4 ही बताए जाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमने बताया आपको, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स बोले जाते हैं। एक है जबान के जस्ट नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, एक है आपके जॉ बोन, ये है जॉ बोन, इस जॉ बोन के जस्ट नीचे अपने जबड़े में नीचे उंगली लगा करके देख सकते हो, वहां पे तुम्हें फील होगा, उसे कहते हैं सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और एक यहाँ पर जॉ बोन की एज पर सबसे बड़ा वाला पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड थ्रू डक्ट ऑफ स्टेंसन, यहाँ पे लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं, डक्ट ऑफ स्टेंसन खुलता है। ठीक है, इसमें एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, और प्लस इसका जो सिक्रीशन है वो सिरस ज्यादा होता है, म्यूकस कम होता है, मतलब वाटरी ज्यादा होता है। ठीक है, जो सबलिंगुअल होता है इसका बाय एंड लार्ज म्यूकॉइड होता है, सब मैंडिबुलर का सेरस भी होता है, पर उसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स नहीं होते हैं। सो ये डक्ट ऑफ स्टेंसन से पैरोटिड ग्लैंड ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का जो डक्ट होता है इसको बोलते हैं वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट। और सब लिंगुअल ग्लैंड के कई सारे छोटे 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 ऐसे डक्ट्स होते हैं जो टंग के नीचे खुलते हैं, इन्हें कहते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस। ठीक है, तो इनसे सलाइवा बनता है, सलाइवा में 99% 95% से ऊपर पानी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। एमाइलेज किसको तोड़ेगा, पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ेगा, पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइसैकेराइड्स में। इसीलिए थोड़ी देर तक अगर आप ब्रेड को चबाते हो तो थोड़ी देर बाद वो मीठी लगने लगती है, क्योंकि उसका जो स्टार्च है इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज सिंपली बाय द इफेक्ट ऑफ सलाइवरी एमाइलेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड टायालिन। दिस सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सलाइवा में 6.5 का स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, इस पर काम करता है, और इसको अपनी एक्टिविटी के लिए क्लोराइड आयंस चाहिए होते हैं, Cl- आयंस मैंडेटरी होते हैं, उनके बिना टायलिन काम नहीं कर सकता है। टायलिन जब आप खाने को निगल जाते हो तो आपके पेट के HCl से टायलिन बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आधे घंटे तक वो आपके पेट में भी काम करता रहता है। इसीलिए खाने को ढंग से चबाना बहुत जरूरी है ताकि टायलिन या सलाइवरी एमाइलेज उसमें पूरा पूरा मिक्स हो जाए। ऑलराइट, नाउ ये जो खाना आप चबाते हो, जब मैस्टिकेशन करते हो, उसको तोड़ते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, सलाइवा पे मिक्स करते हो, तो फाइनली उससे एक छोटा सा बॉल ऑफ ब्रोकन डाउन पीसेस ऑफ फूड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं फूड बोलस। ठीक है, ये फूड बोलस फर्दर ट्रांसमिट होता है नीचे की तरफ इसोफेगस में बाय डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन इज द फेनोमेनन ऑफ स्वैलोइंग, इसको बोलते हैं डीग्लूटेशन। ठीक है, डीग्लूटेशन का रिफ्लेक्स होता है, और ये रिफ्लेक्स जो काम करता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं तुम लोगों को दिखाऊं, हाउ डू आई शो दिस, न्यू शेयर, ओके, हैंग ऑन। I hope you are able to see this. Okay, good. So just watch how swallowing really happens. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं करते हो, ये खुद ब खुद होता है। ठीक है, गौर से देखना, मैं धीरे धीरे करके चलाऊंगा इसको, आपको समझ में आएगा।
ये देखिए किस तरीके से फूड को फेरिंग्स में जाने से बचाया जा रहा है और पीछे ईसोफेगस में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये एपिग्लॉटिस है। ये जो ऐसा निकला हुआ है पॉइंटेड सा, दिस इज एपिग्लॉटिस। और इधर से नीचे की तरफ ये रास्ता जो जा रहा है ये ट्रैकिया में जा रहा है। पीछे की तरफ है ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में न जाने पाए इसलिए पूरे ट्रैकिया को ऊपर खींचा जाता है। एपिग्लॉटिस उसको कवर करता है ताकि खाना इधर ना जाए और धीरे से प्यार से उसे पीछे की तरफ ईसोफेगस में ट्रांसफर कर देता है फूड के बोलस को। ठीक है, देखिए किस तरीके से प्रोटेक्टिवली उसको कवर किया और प्यार से पीछे ट्रांसफर कर दिया। कभी कभी खाना जब अटक जाता है उसे चोकिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, गलती से कुछ अगर ट्रैकिया में चला गया तो सडनली आपका फिर चोकिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और कफ करके आप उस चीज को बाहर निकाल देते हो। और वापस सही जगह पे उसे भेजा जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ डिग्लूटेशन वर्क्स। नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी वर, आई होप सबने देखा होगा, पता नहीं बाद में पता चलेगा देखा या नहीं देखा। तो ये जो फूड बोलस होता है आपका, ये फूड बोलस इस तरह से डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स होता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में, वहां से मैसेज आता है। आप सोच के नहीं करते हो, आप खुद से अभी अपना थूक घोंट करके देखो, सलाइवा को स्वैलो करके देखो, आपको पता चलेगा कैसे आपका ट्रैकिया ऊपर की तरफ उठता है और एपिग्लॉटिस उसको कवर करता है। तो वहां पर जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा था, एपिग्लॉटिस है, नीचे ट्रैकिया है, ट्रैकिया को ऊपर धक्का मारा जाता है और एपिग्लॉटिस इस तरीके से हो जाता है, इसको कवर कर लेता है, खाना पीछे ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ईसोफेगस के ऊपर। ईसोफेगस सिंपली एक लंबी सी ट्यूब है और कुछ नहीं है। ठीक है, ईसोफेगस का जो एंटीरियर 1/3 होता है, एंटीरियर 1/3, ये इसमें वॉलंटरी कंट्रोल थोड़ा होता है, तभी आप उसको घोंट पाते हो किसी चीज को। पोस्टीरियर में कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी चीज, आपके यहां से ईसोफेगस ऑनवर्ड्स गट जो शुरू हो जाता है, इसकी हिस्टोलॉजी थ्रू आउट द गट मोर और लेस रीजन वाइज सेम ही रहती है, सेम स्ट्रैटा पाए जाते हैं। क्या क्या स्ट्रैटा होते हैं, सबसे बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी हमेशा, उसके अंदर लेट मी ड्रॉ शेप, सबसे बाहर एक लेयर होगी, उस लेयर के अंदर फिर एक और लेयर होगी, इस तरह से। ठीक है, और मल्टीपल लेयर्स इस तरह से जो बनती जाती हैं अंदर, इनका नंबर ऑफ रीजन सेम रहता है। ठीक है, तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है, उसे कहा जाता है सिरोसा। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव होती है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, एपिथेलियल नहीं, कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होती है, पेरिटोनियल लाइनिंग होती है ये। तो पेरिटोनियम में भी एपिथेलियम होता है, पेरिटोनियल एपिथेलियम कहते हैं उसको, ये उसी की लाइनिंग होती है। और उसके जस्ट नीचे आपकी आ जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल फाइबर्स होंगे वो उस ट्यूब में, उसके फाइबर्स ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होंगे, सर्कमफरेंशियली, लंबे लंबे ऐसे बांस या तार या सरिया कुछ इमेजिन कर लो, जिसको एक सर्कलेट में पैक करके रख दिया गया है। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन में वो कैसे दिखेंगे, ऐसे छोटे 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 ऐसे दिखाई देंगे चारों तरफ। ठीक है, लाइक दिस। ओके, उन लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के बाद जो लेयर होती है उसे वो होती है सर्कुलर मसल फाइबर्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स बाहर की ये वाली लेयर हो गई, फिर सर्कुलर मसल फाइबर्स की लेयर हो गई, उसके बाद फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और उसके बाद फिर एक इपिथेलियल लेयर होती है। ठीक है, तो जो इपिथेलियल लेयर होती है इसे गट इपिथेलियम कहा जाता है, इसी को म्यूकोसा भी कहते हैं। इस म्यूकोसा के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होती है। कई बार म्यूकोसा और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में मस्कुलरिस म्यूकोसा भी होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए। वैसे आगे तो आएगा, बट यहाँ पे बता दें आप लोगों को एक बार।
ये जो सबसे बाहर की लेयर है, इन केस ऑफ ईसोफेगस ये सिरोसा नहीं होती है, बाकी सब जगह होता है, पर यहाँ पर सिर्फ ये फाइब्रोसा होती है, थोड़ी अलग होती है। इसके जस्ट ये क्रॉस सेक्शन है, ये टीएस है और इस ईसोफेगस का ट्रांसफर सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो सबसे बाहर फाइब्रोसा की लेयर है, उसके बाद जो लेयर होती है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की लेयर है, इसके बाद जो लेयर है ये सर्कुलर मसल फाइबर्स की लेयर है, और इसके बाद जो लेयर है ये वाली लेयर, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है। इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के जस्ट ऊपर अगर गौर से देखोगे तो यहां पर तुम्हें दिखाई देगा, ये लेयर एक दिखाई दे रही है, ये लेयर, ये वाली जो पर्पलिश सी दिख रही होगी आप लोगों को, ये पर्पलिश लेयर जो है इसे कहते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा के में भी फाइबर्स होते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ये इपिथेलियल लेयर होती है ऊपर की, ये ट्विस्ट हो जाती है या इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा के जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, जिसमें से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, तमाम चीजें पास होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रैटा हैं, ये इतने जो ये लेवल्स हैं, लेयर्स हैं, ये लेयर्स पूरे गट में मोर और लेस सेम ही रहेंगे एक्सेप्ट फॉर फाइब्रोसा। दिस इज प्रेजेंट ओनली इन ईसोफेगस, बाकी जगह पे इट इज रिप्लेस्ड बाय सिरोसा। सिरोसा इन रेस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, ओके। तो ईसोफेगस जो होता है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना आप घोंट पाते हो, स्वैलो कर पाते हो। ऊपर से तो ट्रांसफर हो गया माउथ से, लेकिन नीचे जाने के लिए ऑल्टरनेटिव जोन्स में आपकी ट्यूब में एक रीजन में अगर सर्कुलर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट में लॉन्गिट्यूडनल कर रहे होंगे और सर्कुलर रिलैक्स किए होंगे, फिर नेक्स्ट में सर्कुलर कर रहे होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स होंगे। नतीजा क्या होता है, जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ल्यूमेन छोटा होगा, जब सर्कुलर मसल फाइबर्स ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ल्यूमेन छोटा, ल्यूमेन इस खाली जगह को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन। तो ल्यूमेन कम हो जाता है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ल्यूमेन बड़ा हो जाता है, लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। कॉमन सेंस से सोच सकते हो। नतीजा ये होता है कि जो फूड बोलस यहाँ पे रखा हुआ है, जहां फूड बोलस है यहाँ पे हमें ल्यूमेन का डायमीटर ज्यादा चाहिए, तो इस पर्टिकुलर रीजन के जस्ट पीछे वाला जो रीजन है वहां पे सर्कुलर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, पुशिंग दिस फॉरवर्ड। आप खाना जो घोंटते हो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जाता है, ठीक है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्मूथ मसल फाइबर्स करते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। सीक्वेंशियली ऑल्टरनेटिव जोन में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करके पेरिस्टाल्सिस करवाते हैं। मूविंग ऑन, ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक थ्रू ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पर एक ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जिससे स्टमक में खुलता है। स्टमक में कहते हैं फंडस होता है, बॉडी होता है और पाइलोरस होता है। बीच का जो रीजन है उसे एंट्रम कहते हैं, ठीक है। एंट्रम का जो पार्ट पाइलोरस के पास होता है उसे पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं, ओके। इसके अंदर स्टमक की वॉल में भी ये वाला जो एंड है ये हार्ट के पास होता है, तो इसको कार्डियक एंड बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है इसमें भी वही लेयर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं ऑब्लिक लेयर, ठीक है। ये सारी की सारी मस्कुलर लेयर्स जब बीट करती हैं, देखो यहाँ पर सिरोसा आ गया सबसे बाहर की लेयर में, when these muscle fibers beat they cause churning of the food material inside. आउटर साइड में एक ग्रेटर कर्वेचर है स्टमक का और एक लेसर कर्वेचर है, जे शेप्ड ऑर्गन है इस वजह से। इनर साइड में जो वॉल होती है वहां पे ऐसा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिन्हें र्यूगी कहा जाता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत उबड़ खाबड़ होता है, अंदर से पेट चिकना नहीं होता है, र्यूगी होते हैं वहां पर, ठीक है। ये ग्रॉस एनाटॉमी है स्टमक की। नाउ थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक वॉल, ये वन साइडेड होता है इसीलिए ये वॉल्व भी बोलते हैं, यहाँ से फूड बोलस जब स्टमक में आ जाता है वहां डाइजेशन होता है, तो ये यहाँ से आगे चल के डिओडेनम में जाता है। स्टमक में क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं, स्टमक में रिलीज होगा आपका HCl, HCl कौन रिलीज करेगा, चीफ सेल्स पेराइटल सेल्स रिलीज करेंगी, पेराइटल सेल्स रिलीज करेंगी। उसके अलावा पेप्सिन एंजाइम ये रिलीज होता है, इसे कौन रिलीज करता है, चीफ सेल्स रिलीज करती है। इसके अलावा म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस कौन रिलीज करता है, गॉबलेट सेल्स रिलीज करती है, ठीक है। ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को HCl से
डाइजेस्ट ना हो पाए, HCl डिस्ट्रॉय ना कर दे, क्योंकि बहुत लो पीएच होता है, पीएच तकरीबन 1 से 2 के बीच में होता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो म्यूकस इज द प्रोटेक्टिव लेयर। जो सेल्स ये सिक्रीट करती हैं HCl, वो खुद डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं HCl से, क्योंकि they secrete HCl separately as H+ ions and Cl- ions। तो जब गैस्ट्रिक कैविटी में आता है तब वो HCl बनता है, सेल के अंदर जब तक होता है तब तक वो HCl नहीं होता है। ठीक है, ये भी बच्चों को डाउट आता है, तो मैं इसको भी क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां पर जो डाइजेशन होगा, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, बच्चों में रेनिन भी निकलता है, एडल्ट्स में नहीं निकलता है। रिमेंबर दिस इज RENNIN, रेनिन। ये लैक्टोज के डाइजेशन के लिए चाहिए होता है, एडल्ट्स में नहीं निकलता है, ओल्ड एज में दिक्कत हो जाती है, जिसके लिए रेनेट टैबलेट्स लेते हैं, जो काफ से बनाया जाता है, बछड़ा। ठीक है, रेनेट की टैबलेट्स ली जाती हैं। मूविंग ऑन, अगर आप इसके वॉल को देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखें सिरोसा की जो लेयर है, ये विसरल पेरिटोनियम और कनेक्टिव टिश्यू लेयर मिला करके एक लेयर बनी हुई है सिरोसा की। इसके जस्ट बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, उसके जस्ट बाद सर्कुलर मसल लेयर है, और उसके जस्ट बाद ऑब्लिक मसल लेयर है। दिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द मस्कुलरिस। उसके जस्ट ऊपर है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा की लेयर, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, और उसके ऊपर है मस्कुलरिस म्यूकोसा, और उसके टॉप पर है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा की जो पूरी लेयर है, उसमें जो रियुगी बनी हुई है आपकी, उन रियुगी के बीच बीच में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। तो ये जो पिट बना हुआ है, ये अपने आप में देखें ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है ये। ठीक है, इसकी जो एपिथेलियल लेयर है वो सिक्रीटरी होती है, यही सिक्रीट करती है, इसी में होती हैं सारी सेल्स आपकी, चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स, तमाम सेल्स, वो ही सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये हुई बात आपके स्टमक की हिस्टोलॉजी की। फर्दर आगे बढ़ते हैं, जो सिक्रीशंस इसमें होते हैं, जो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है कार्डियक एंड के पास, वहां पर ज्यादातर म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकलता है। इसका काम होता है रिफ्लक्स, उल्टा जाने से रोकना। ठीक है, मेन सिक्रीशन फंडस एंड बॉडी में होता है, जहां पर बाइकार्बोनेट भी निकलता है। ओरिजिनली पेप्सिनोजेन निकलता है, विच इज फर्दर सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू पेप्सिन। ये सबसे प्रिडोमिनेंट एंजाइम है स्टमक का। ओके, एंट्रम और पाइलोरस से भी आप देखेंगे म्यूकस और बाइकार्बोनेट ज्यादा निकल रहे हैं। यहाँ पर बाइकार्बोनेट जब जब निकलता है, इसका काम है ये दिस एक्ट्स एज एसिडिटी रेगुलेटर, कि अगर बहुत ज्यादा होने लगे तो वो उसको थोड़ा सा और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आपकी म्यूकस लाइनिंग डिसॉल्व कर गई स्टमक की, जो कि होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, म्यूकस की लेयर डिसॉल्व कर जाती है, जिसकी वजह से फिर एसिड जो है वो सेल्स को खाना शुरू कर देता है, स्टमक की सेल्स को। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्टमक की। स्टमक कंटिन्यूज इनटू, अच्छा एक चीज और, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। आपके स्टमक में जब सिक्रीशन होता है, 3 मेजर फेजेस बोले जाते हैं। एक को बोलते हैं सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। सेफेलिक फेज क्या होता है, जब आपने खाना खाया भी नहीं है, पेट में पहुंचा नहीं है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन शुरू हो गया। क्यों? सोचने की वजह से। आपने देखा किसी और को गोलगप्पे खाते हुए, आपके मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन और पेट में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, जिसको सीधी भाषा में लोग बोलते हैं पानी आ गया मुंह में। मुंह में ही नहीं, पेट में भी निकलने लगता है। ठीक है, सिर्फ देखने भर से, विजुअल स्टिमुलस से, सोचने से, इमेजिन करने से, स्मेल से, ये जो पूरा स्टिमुलेशन होता है, ये वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10th वेगस, उसकी वजह से ये काम हो पाता है। डायरेक्ट वेगल स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन भी रिलीज होता है। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन रिलीज बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। जब आप गैस्ट्रिक फेज में आते हो, ये तब होता है जब फूड की फिजिकल प्रेजेंस जो स्टमक में होती है वो स्टिमुलेट करती है उसको। 60% ऑफ टोटल गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन जो है वो इसी से होता है। कभी कभी देखा है, आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन किसी और को खाते देखते हो, सडनली आपको भूख लगने लगती है, पेट में आवाज होने लगती है, क्योंकि आपने देखा और अब वो कुछ कुछ जूसेस निकलना शुरू हो गए। फिर जब आप खाते हो तो और जूसेस निकलते हैं, कॉन्स्टेंटली सिक्रीट नहीं होता रहेगा, वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर वेगल स्टिमुलेशन के साथ साथ एंटेरिक नर्व्स, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो वॉल है, गट की जो वॉल में जो नर्व्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू में जो एम्बेडेड होती हैं, वो भी उसको सेंस करती हैं और वो भी स्टिमुलेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए। इसके अलावा तीसरा जो फेज होता है ये होता है इंटेस्टाइनल फेज। ये तब होता है जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया होता है। ठीक है, इसमें अगर गैस्ट्रिन का इफेक्ट होगा तो जो स्टमक की वॉल है वो ज्यादा एक्टिवेट होगी। अगर सिक्रेटिन का इन्फ्लुएंस होगा जो कि निकलता है डियोडेनम से, तो
स्टमक की वॉल कम एक्टिवेट होती है, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन का भी इनहिबिटरी इफेक्ट होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड जीआईपी का भी इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। आई सपोज आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, दिस इज जस्ट टू रिमाइंड यू। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पर डियोडनम होता है वहीं पर लिवर और पैंक्रियाज साथ में लगे होते हैं। तो इस डायग्राम को गौर से देखें, यहां से डियोडनम ये यू शेप्ड ट्यूब शुरू हुई, इसी यू शेप्ड ट्यूब में एक डक्ट आकर के खुलता है अंदर की तरफ, ठीक है। जहां पर ये खुलता है वहां पर उसको पैपिला ऑफ वेटर कहते हैं। रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसे पैपिला ऑफ वेटर कहते हैं। पैपिला ऑफ वेटर के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देगा एक ऐसे बड़ा सा अंदर चेंबर होता है जिसे कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। ये एम्प्यूला ऑफ वेटर जो है, इसी में आकर के पैंक्रियाज जो यहाँ पे पेट के पीछे बना हुआ है, ये पैंक्रियाज की डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट और लिवर से निकलने वाला आपका कॉमन बाइल डक्ट दोनों आकर के मिलते हैं और एम्प्यूला ऑफ वेटर फिर बाहर डियोडनम में खुलता है। कुछ केसेस में पैंक्रियाटिक डक्ट एक पैरेलल दूसरी ओपनिंग के थ्रू खुलता है और बाइल डक्ट अलग ओपनिंग से खुलता है, बहुत रेयरली होता है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी होती है, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इनको अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो किस तरीके से अरेंज्ड है, गौर करें जरा। जो पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाज के अंदर से आ रहा होता है उसे कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग, ये पैंक्रियाज के अंदर से आ रहा है, ठीक है। और ये आकर के देखें डियोडनल पैपिला है वॉल में, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डियोडनल पैपिला। जहां से जस्ट अंदर जब आप जाते हैं तो आपको मिलता है एम्प्यूला ऑफ वेटर, ये पूरा रीजन, ठीक है। जहां पर आकर के कॉमन बाइल डक्ट भी मिला हुआ है जो कि आ रहा है कहां से, लिवर से। जब लिवर से ये निकलता है डक्ट तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं हेपाटिक डक्ट। ये देखें, ये जो है ये हेपाटिक डक्ट है। दोनों लोब्स जो लिवर के होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, दोनों से निकलने वाले हेपाटिक डक्ट से आकर के गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट मिलता है और वो मिलकर के बनाता है सीबीडी या कॉमन बाइल डक्ट। हेपाटिक डक्ट जो होते हैं ये लिवर के अंदर जाते हैं, जहां पर ये जो बाइल जूस है उसको कलेक्ट करते हैं, वो वहां से लेकर के आते हैं। गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर पैल्पिटेशन होता है इसमें, जिसकी वजह से फिर वो सिक्रीट होकर के डियोडनम में आ जाता है बाइल जूस। ओके, अब लिवर के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है। लिवर में मेजर तो आपको पहले दो लोब्स दिखाई देते हैं, ये लेफ्ट लोब और ये राइट लोब दिखाई देते हैं। उन लोब्स के अंदर आपको ऐसे कई सारे लोब्यूल्स दिखाई देंगे और अगर किसी एक लोब्यूल को आप देखते हैं डिटेल में तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एक सेंट्रल वेन होती है बीचों बीच में, ये हेक्सागोनल से लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स में एक सेंट्रल वेन होती है वर्टिकली जो जा रही है, ये क्रॉस सेक्शन है इसलिए आपको ऐसा दिखेगा, जो कि हेपाटिक वेन, मतलब जो लिवर से ब्लड कलेक्ट करके जो वेन इंफीरियर वेना केवा में जाके मिलती है उससे मिलती है ये सेंट्रल वेन, इट फीड्स इनटू हेपाटिक वेन। ओके, इस सेंट्रल वेन से आकर के पेरिफेरी से पोर्टल वेन की एक ब्रांच, नाउ पोर्टल वेन्स आर पार्ट ऑफ द पोर्टल सिस्टम। विच पोर्टल सिस्टम? दी हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम आपके Hello? Oh my God.
स्टूडेंट्स, आप में से कुछ बच्चे लिख रहे हो कि वॉइस और ऑडियो नहीं आ रही है। हाँ, ये सही है, वॉइस और ऑडियो नहीं आ रही है, मे बी नेटवर्क इशू है। अभी प्लीज ऑनलाइन रहे हो, अभी ठीक करते इसको। प्रीति मैडम, आपको फिर से परमिशंस देनी पड़ेंगी। सर मैंने स्क्रीन दे का दिया आंसर है। हाँ, आ गया, अभी आ गया। थैंक यू। Why is this not reading it? बच्चों, आवाज आ रही है अभी? मैडम, आवाज आ रही है अभी? क्लियर है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। ओके, ग्रेट। तो मैं ये कह रहा था कि आपका हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन की वॉल को कनेक्ट करता है लिवर के साथ। ब्लड वेसल्स होती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है उसको लेकर के सीधा लिवर में जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं लाता है, क्योंकि ब्लड के लेवल्स को कांस्टेंट रखना जरूरी है। तो वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पोर्टल वेन की ब्रांच, ये ब्लू कलर से जो दिख रही है, ये आकर के लिवर के लोब्यूल की पेरिफेरी में, मैंने बताया लिवर में लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, हर लोब में बहुत सारे हेक्सागोनल लोब्यूल। एक लोब्यूल को अगर आप देखते हैं उसमें आपको एक सेंट्रल वेन दिखाई देगी और पेरिफेरी में आपको दिखाई देंगी ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन। नंबर 1 ब्रांच ऑफ हेपाटिक आर्टरी, वो जो ब्लड ले करके लिवर में आती है, ब्लड वेसल, ठीक है। और बाइल डक्ट्यूल जो है वो ये हेपाटोसाइट सेल्स हैं, ये जो सारी आपको क्यूबॉइडल सेल्स दिख रही हैं ये हेपाटोसाइट सेल्स हैं। इनके बीच में डक्ट्यूल बना हुआ है, इसके अंदर ही बाइल सिक्रीट करती हैं ये सेल्स। ऑलराइट, तो जो भी ब्लड आता है इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब हो पोर्टल वेन में आता है, वहां ये साइनस में जाता है, साइनस या साइनोसॉइड में जाता है, और वहां से फिर ये हेपाटोसाइट सेल्स जो होती हैं जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी या डिपॉजिट कर लेंगी, कुछ जो कुछ उनको करना है, सच दैट जब सेंट्रल वेन में वापस पहुंचता है ब्लड तो उसके सारे लेवल्स नॉर्मलाइज हो चुके होते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज अगर आप 3D में देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूं ताकि आप देख सकें। ये ऑटो रोटेट इज नॉट वर्किंग और व्हाट? ओके, ऑटो रोटेट इज नॉट वर्किंग, आई स्विच्ड इट ऑफ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें किस तरीके से ये इंफीरियर वेना कैवा से जाकर के सारी वेसल्स को मिलना है, हेपाटिक वेन्स को। ठीक है, तो एक लोब्यूल के अंदर सेंट्रल वेन देखिए किस तरह से गई हुई है, सारे लोब्यूल्स हैं लाइन से, हेक्सागोनल लोब्यूल्स एक दूसरे के साथ एकदम पैक्ड, जैम पैक्ड इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिनके सेंट्रल वेन जो है जो जाकर के हेपाटिक वेन से, फिर हर एक सेंट्रल वेन ये हेपाटिक वेन से जाकर के मिल रही है, इधर से हर एक के से। और इनकी पेरीफेरी में क्या है, पेरीफेरी में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, गौर करें। ये सबसे बाहर की तरफ पोर्टल वेन है, इंटरलोब्यूलर पोर्टल वेन, ये पोर्टल ब्लड वेसल है, इंटेस्टाइन से आ रही है ये ब्लड लेकर के, और ये मिल रही है सीधा सीधा जाकर के सेंट्रल वेन के साथ। ठीक है, और ग्रीन कलर का जो है ये बाइल का डक्ट है, जो हर लोब्यूल में से बाइल जूस को जो हेपाटोसाइट सेल सिक्रीट
करती हैं उनको कलेक्ट करता है और लेकर के आता है। इसके अलावा इन ब्लड वेसल्स के अंदर और जो साइनोसॉइड वाले स्पेसेस होते हैं जो हमने ऊपर आपको दिखाए थे, इन साइनोसॉइड के स्पेसेस में एक खास किस्म की सेल भी घूमती रहती है यहाँ पर, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं कफर सेल्स, KUPFFER, कफर सेल्स। ये कफर सेल्स क्या करती हैं? दे आर फैगोसाइटिक, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ये मोनोसाइट से बनती हैं। मोनोसाइट सेल जो ब्लड की होती है ना, उसी से डिराइव होती है ये। मोनोसाइट सेल इज द प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फैगोसाइट्स मैक्रोफेजेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कफर सेल्स भी वही होती हैं, ये लिवर में काम करती हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो बाइल जूस जो निकलता है, बाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बाइल सॉल्ट्स। वो क्या करते हैं? दे एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट, फैट इमल्सिफिकेशन में काम करते हैं। एक फैट की ड्रॉपलेट को कई सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, ताकि जब उससे पैंक्रियाटिक जूस या इंटेस्टाइनल जूस मिले तो वो उसका लाइपेज जो होता है वो काम कर पाए, क्योंकि छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देने से इनकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये इस किस्म के बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो जिनका सोपी एक्शन होता है, इनमें बेसिकली डिटर्जेंट एक्शन होता है इनका, ठीक है। जिसकी वजह, जिस तरीके से सोप तोड़ देता है ऑयल को, उसी तरीके से फैट्स के डाइजेशन में, फैट इमल्सिफिकेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पैंक्रियाज के ऊपर। पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, रेसमोस किस्म का ग्लैंड है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, दो किस्म की इसमें सिक्रीशंस होते हैं। ये अपने आप में एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक एंडोक्राइन कंपोनेंट भी है प्लस एक्सोक्राइन कंपोनेंट भी है, ठीक है। एंडोक्राइन कंपोनेंट क्या है? एंडोक्राइन सिक्रीशंस वो सिक्रीशंस है जो डायरेक्टली ब्लड में होते हैं। तो इसमें कौन सी सेल्स होती है जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं? उन्हें हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनसे क्या निकलते हैं? इनसे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम, जब इंसुलिन एक्टिवेट होगा ब्लड में जाएगा तो वो जाकर के हेपाटोसाइट्स पे काम करता है, और जो इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल लेकर के हेपाटिक वेन जो आ रही थी ब्लड को, उसमें अगर जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हेपाटोसाइट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब मोबिलाइज करना होता है तो ग्लूकागॉन काम करेगा, वो वहां से तोड़ करके ब्लड में ऐड कर देगा ग्लूकोज को, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो जाता है, ठीक है। दूसरा जो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो होते हैं पैंक्रियाटिक एसिनर सेल्स। एसिनाई क्या होती है? कुछ नहीं, ये इसी तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर बना, इसी को एसिनस कहते हैं। इसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये पिरामिडल शेप्ड सेल्स होती हैं, बेसिकली क्यूबॉइडल ही होती हैं, पर गोल होने की वजह से पिरामिडल हो जाती हैं। ये जो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन है, क्योंकि ये डक्ट में जाता है और वहां से वो कलेक्ट होते होते पूरे पैंक्रियाज के सारे हर पार्ट से, हर लोब्यूल से कलेक्ट होता हुआ आकर के फाइनली पैंक्रियाटिक डक्ट में मिल जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस जो बनता है ये आपके गैस्ट्रिक जूस से कई मायनों में बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको इसमें मिल सकता है। नाउ सबसे चीज जो पैंक्रियाटिक जूस में होती है, इसमें पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है और फॉस्फोलाइपेज होता है। इसके अलावा इसमें एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, एंड प्रोटियोलाइटिक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं। दे आर रिलीज्ड एज ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। इसको मैंने समराइज फॉर्म में, ये इनके बीच का गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक जूस का डिफरेंस जो है, इनका इसका पीएच उल्टा होता है। पैंक्रियाटिक जूस में अल्कलाइन हो जाता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने इसमें लिख दिया है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसमें कठिन चीज नहीं है। अब हम आते हैं जेजुनम और इलियम पे। जेजुनम और इलियम में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडेनम था, दूसरा पार्ट जेजुनम है और तीसरा पार्ट इलियम है। जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं वो तो आपको पता होंगी, जो नहीं पता है वो मैं आपको बता दूं, जो मेरे लिए असली ह्यूमन बीइंग को अगर डाइसेक्ट करके खोलते हैं ना उसकी विसरा को, तो उसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे कहते हैं ओमेंटम। ओमेंटम दो पार्ट में होता है, एक को बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम और एक को बोलते हैं लेसर ओमेंटम, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम ये वो कनेक्टिव टिश्यू का फोल्ड है जो
पीठ से गट को जोड़ता है, ठीक है, उससे चिपका के रखता है जो टिश्यू होती है, उसे कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ये जो ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टमक का, ये वाला इस तरफ लगा होता है, ये जोड़ वॉल को उससे, और का ये लेसर कर्वेचर होता है, इसे बोलते हैं लेसर ओमेंटम। ये वेंट्रल वॉल यानी कि पेट की वॉल से और जो स्किन के नीचे जो पूरा पार्ट है उसके साथ ये उसको कनेक्ट करता है। इसी में फैट डिपोजिशन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोगों की तोंद बढ़ने लगती है, क्योंकि ये ओमेंटम टिश्यू है। आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा हो साइड सेल्स डिपॉजिट हो सकती हैं, जब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उसी को हम टिश्यू कहने लगते हैं, बेसिकली कनेक्ट हुई होती है, ठीक है। तो ये जो ओमेंटम है ये कवर करके रखते हैं, तो अगर कभी आप लोग जब करेंगे और आपको कैडावर्स आएंगे तो ये ओमेंटम जब आप हैं तब आपको इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, नहीं तो ये झिल्ली की तरह से कवर्ड रहता है, ठीक। नाउ एम आई ऑडिबल? दिक्कत तो नहीं आ रही है? मुझे फिर से बता। सर बीच में आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, बोलते बोलते थोड़ी ब्रेक हो रही है, ओके। कुछ नेटवर्क का ही थोड़ा है मैडम, ये पता नहीं कल रात से ये चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आई एम बेस्ट टू बी एज लाउड एज पॉसिबल। एक तो इसमें इतने कम टाइम में इतना कुछ कवर करना, उसमें भी अगर आवाज हो जाएगी तो बड़ी गड़बड़ चीज। चलिए, आई विल टॉक टू माय इंटरनेट पर्सन एंड थोड़ा उसको डांट लगाता हूँ कस के, क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ आई सपोज अभी अगर उसमें कोई चीज ना समझ आ रही हो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो डोंट वरी, डाउट क्लास होगी, उसमें पूछ लेना, हम सारी चीजें आपको बता देंगे, क्लियर कर देंगे। अगर कुछ भी ऐसा रहा है जिसमें आवाज कट गई या सुन नहीं पाए ऐसा आया तो हम उसको डील कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। कि हमने एक और डायग्राम यहाँ पे डाला है ताकि आपको मोमेंटम और ग्रेटर कर्वेचर का ये डिफरेंस समझ में आ सके, किस तरह से काम करता है। नाउ गोइंग फर्दर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला ग्रीन वाला रीजन पूरा डियोडेनम हो गया, ग्रीन बनाया है क्योंकि यहीं पे बाइल जूस वगैरह और पैंक्रियाटिक जूस दोनों मिलता है। इसके बाद जो पार्ट है जेजुनम का और फिर इलियम का, इलियम आकर के इलियोसिकल वॉल्व से ये खुलता है इस रीजन में, लार्ज इंटेस्टाइन के। ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सीकम। ये हमें ह्यूमंस में बड़ा रिड्यूस्ड होता है, बाकी एनिमल्स में होता है। ये इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू खुलता है, इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू खुलता है। यहीं पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी लगा हुआ है जो कि आपको पता ही है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन कोलन शुरू होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। जब इधर जाता है ये ट्रांसवर्स कोलन, फिर यहाँ से नीचे आता है तो डिसेंडिंग कोलन बोला है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए है, ठीक है। जो काइम है, काइम फूड को काइम शुरू कर देते हैं जब वो स्टमक से डियोडेनम में आता है पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, उसी से काइम कहना शुरू करते हैं। अब ये पहुंचता है सिग्मोइड कोलन जो कि एस शेप में, इस तरीके का उल्टे एस शेप में होता है, जहां से वो रेक्टम में पहुंच के फाइनली एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें प्राइमरीली एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, जरा इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी इनर वॉल में वॉल है, उसकी तो हिस्टोलॉजी सेम रहेगी जो पहले बताया था, ठीक है। उसमें भी सबसे बाहर सिरस लेयर होगी, सिरोसा होगा, मस्कुलरिस होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर लेयर होगी, सर्कुलर मसल फाइबर लेयर होगी जिसको टुगेदर वी कॉल इट मस्कुलरिस, और उसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू होगी, मस्कुलरिस म्यूकोसा होगा, और उसके बाद म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होगा। तो जो कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है उसे सब म्यूकोसा कहते हैं। तो इसका जो सरफेस होता है वहां पर प्लिकी सर्कुलर का स्ट्रक्चर होता है, जैसे रियूगी होता है स्टमक में, वैसे इंटेस्टाइन की वॉल भी जो होती है वो इस तरीके से उबड़ खाबड़ सी दिखती है। इनको प्लिकी सर्कुलरिस कहते हैं। ये गोल गोल दिखते हैं, लेकिन गोल गोल ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिन्हें प्लिकी या प्लिका सर्कुलरिस बोलते हैं। प्लिकी मतलब प्लूरल हो गया। तो अगर आप मैग्नीफाई करके देखते हैं प्लिकी सर्कुलरिस को, तो आपको उसमें दिखाई देता है कि ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए जिन्हें हम कहते हैं विल। एक विलाई को जब आप मैग करके देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देता है कि किस तरीके से एक तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इन विलाई के बीच बीच में खड्डे होते हैं जिन्हें इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन कहते हैं। क्रिप्ट्स लाइबरकुन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन है, इसी में सेल्स होती हैं जो साइज करती है क्या, they size the intestinal juice which is called
सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। तो ये जो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट है ये हमेशा बीच में होती है विलाई के। नाउ विलाई की जो सेल्स होती हैं, ये वाली सारी सेल्स हैं आपकी लाइन से जो एपिथेलियल से लगी हैं, इस अगर एक सेल को बड़ा करके देखेंगे तो इस सेल के सरफेस पे भी आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पर माइक्रो विलाई मिलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस। तो मतलब क्या हुआ कि विलाई तो है ही, उस विलाई पे भी छोटे 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 ऐसे बाल जैसा पूरा बना हुआ है। नतीजा होता है कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये अच्छी अपीयरेंस हो जाता है इसका। इसी को ब्रश बॉर्डर या मेम्ब्रेन बॉर्डर कहा जाता है, मेम्ब्रेन बॉर्डर या कहा जाता है, which is required for which has a very important role in increasing the surface area for absorption, increasing the surface area for absorption of digested food materials। तो इसमें भी अगर आप देखें, ये एक विलस के अंदर एक लिम्फेटिक वेसल हमेशा हो, जो ग्रीन कलर से बना है, यहाँ देखें और you will be able to see this lymphatic vessel, it goes inside the villus, ठीक है। यहाँ पे ये अंदर गया हुआ है और इसको दोनों तरफ से ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड कर रखा है, तो जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो सीधा इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल जिसको लैक्टी कहा जाता है, इसका रोल क्या, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ जब इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वहां से एब्जॉर्ब के बाद ये चीजें सारी आकर के सब म्यूकोसा की जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें चला जाएगा, और उन ब्लड वेसल्स निकल करके चला जाएगा सीधा हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में ये ब्लड जाएगा, जहां से फिर वो वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ओके, ये फर्क का ध्यान रखना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। नाउ इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स बोले जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो सिर्फ डिओडेनम में पाए जाते हैं, ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। पेयर्स पैचेस बेसिकली लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स बनते हैं इनसे, फैगोसाइटिक होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट में होते हैं, ठीक है। नाउ और क्रिप्स ऑफ लाइबरकुंज जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये डिओडेनम और इलियम में पाए जाते हैं, ये नहीं होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। दे आर फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ लैमिना प्रोप्रिया, प्रोपिया लिखा हुआ है, दिस इज प्रोपिया। लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है, लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं जो एपिथेलियल है कंबाइंड विद द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया इज epithelial tissue, epithelial layer combined with underlying connective, उसे लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन को जब देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया था, देखिए इलियोसिकल वॉल्व होता है जो इलियम और सीकम को कनेक्ट करता है, और वहां से सीकम से फिर शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस पर जो डिप्रेशंस होते हैं उन्हें हॉस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। और ये हॉस्ट्रा इंटरनली इसमें भी प्लिकी बने होते हैं, जो सर्कुलर खड्डे जैसे प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं, जहां जहां बाहर स्ट्रा होता है वहां अंदर प्लिकी होते हैं, ठीक है। पहला जो यहाँ पर टर्न लेता है इसको राइट कोलिक फ्लेक्चर कहते हैं, क्योंकि इमेजिन कीजिए जिस इंसान का उसका ये राइट हैंड साइड होगा, तो इस हेपेटिक फ्लेक्चर, क्योंकि ये लिवर के जस्ट नीचे पड़ता है पीछे की तरफ, तो इसको राइट कोलिक फ्लेक्चर कहते हैं या हेपेटिक फ्लेक्चर कहते हैं। इसी लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर जो होता है यहाँ स्प्लीन पास में ही होता है, इसके जस्ट आगे की तरफ, तो इसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहते हैं, ठीक है। अगर आप इस बॉल की हिस्टोलॉजी देखें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो आपको इसमें दिखाई देगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आपके पास बाहर का सिरोसा की लेयर तो सेम वैसे ही, ठीक है। इसमें क्रिप्स बनी हुई है, क्रिप्ट का मतलब होता है खड्डा, ठीक है। पर इसमें अधिकांश जो सेल्स होती हैं ये गॉबलेट्स होती हैं, which only secrete mucus, so that जो undigested food material large intestine होता है वो स्मूथली मूव कर सके।
लार्ज इंटेस्टाइन में प्राइमरली वाटर का रीज होता है, बाकी डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस सारे के सारे होने थे एब्जॉर्ब, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुके हैं। जो भी अगर कुछ डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस बच जाते हैं, वो जब कोलन में पहुंचे हैं तो आपके कोलन का जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफोना है, जो बैक्टीरिया है, वो कंज्यूम करते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं। उस एनारोबिक फर्मेंटेशन की वजह से गैसेस बनती हैं, CO2 बनेगा, ठीक है, और वही पास आउट होता है फ्लेटस बन के, जिसे कहते हैं ना गैस कर दिया, उसको फ्लेटस कहते हैं। मार्केट में मेडिसिन हैं जिन्हें एंटी फ्लैटुलेंट कहा जाता है, आप लिखा हुआ देखोगे, एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं, ठीक है। वो गैस तब बनती है अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो काफी सारा जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और वो वहां ऑन होके बिना और पास ऑन होकर के लार्ज इंटेस्टाइन, अब जब इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो बैक्टीरिया का तो बुफे लग गया, अब इससे वो, ठीक है। Am I audible? तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल होता है इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वो ही करता है इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत सारे एसेंशियल बनाते हैं, बहुत सारे ये बनाते हैं जिन्हें हमें बाहर से इसीलिए नहीं पड़ता है, जैसे फॉर इंस्टेंस विटामिन डी, यही बैक्टीरिया बनाते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को भी मारने लगता है, इसीलिए डॉक्टर हमेशा साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल्स देता है साथ में खाने के लिए, डोजेज में एंटीबायोटिक्स के साथ, ये मस्ट होता है क्योंकि वो मरने लगते हैं बैक्टीरिया। बहुत ज्यादा जो लोग एंटीबायोटिक्स अगर खाएंगे तो उनका डाइजेशन बहुत खराब हो जाता है। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, अक्सर बहुत फ्लेटस बनता है, गैस बहुत होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। मोस्टली ये लिवर की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, ठीक है। सो बाय एंड लार्ज दिस इज व्हाट digestive system is supposed to be. Finally, the regulation of digestive secretions, last topic ये आता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में आपको सिंपली बता सकूं, ठीक है। जब जब पेट में फिजिकली फूड पहुंचता है तो इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन क्या करेगा, ये एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देगा और पेरिस्टाल्टिक मोटिलिटी बढ़ा देता है, पेरिस्टालसिस बढ़ा देगा, मूवमेंट बढ़ा देगा, वॉल जो है वो बहुत बीट करेगी, ठीक है। वहां से जब काइम होकर बन करके ये फाइनली डियोडनम में आता है, तो डियोडनम से फिर निकलता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ये तीन चीजें यहां से निकलती हैं। ये तीनों का क्या प्रभाव होता है, इसका मतलब क्या हुआ इन तीनों के रिलीज होने का, कि भैया खाना आ चुका है डियोडनम में। जब ये डियोडनम में आ गया है तो ये चीजें रिलीज होती हैं और ये जाकर के पैंक्रियाज को थ्रू एंडोक्राइन सिक्रीशन है, ये ब्लड के थ्रू जाकर के काम करता है, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट करता है। सिक्रेटिन और सीसीके पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, किस लिए, पैंक्रियाटिक जूस बनाने के लिए, ठीक है। तब वो जूस बनेगा और फिर वो डियोडनम में आकर के ओपन अप करेगा। साथ ही साथ यही सिक्रेटिन और सीसीके जाकर के लिवर को भी स्टिमुलेट करता है बाइल के सिक्रेशन के लिए, ठीक है। एंड दिस सेम सिक्रेटिन एंड सीसीके आल्सो इनहिबिट द फंक्शनिंग ऑफ स्टमक। वो बोलता है कि भैया रुक जाओ, अभी मेरे पास आ गया है, अभी जब तक यहाँ से पैंक्रियाज से सारा जूस निकल नहीं जाता, डाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक आगे मत बढ़ाओ, रुक के रहो, थांबा थांबा, ठीक है। सो सिक्रेटिन एंड सीसीके इनहिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ, लाइक ऑपोजिट इफेक्ट होता है गैस्ट्रिन का, ठीक है, इनहिबिशन कॉज करते हैं। इसके साथ ही साथ जब ये काइम फर्दर आगे बढ़ता है तो इससे वेसोइंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड एक निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनको डायलेट कर देता है ताकि तैयारी में कि भैया डाइजेस्टेड फूड आ रहा है, एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। जब एंडोक्राइन इन्फ्लुएंस आता है पैंक्रियाज के ऊपर, उससे इंसुलिन निकलता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन भी आकर के फिर यहाँ पे काम करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे और फिर वो जाकर के लिवर सेल्स के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। ये मोटी मोटा इनका रेगुलेशन इस तरीके से आपस में ही किया जाता है। इतने कम टाइम में बेटा मैं इससे ज्यादा तुम लोगों को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है।
अगर आपने पहले से पढ़ा होगा, ऑनेस्टली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि टीचर्स को हम लोग को बड़ी चूल होती है। हम अगर 3-4 क्लास लगती है किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, अगर उतना टाइम नहीं मिलता है तो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। बट चूंकि तुम लोग पढ़ चुके हो, पढ़े हुए हो सारा, तो आई होप दिस वाज अ सेशन गुड इनफ टू ब्रश योर मेमोरी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पेन देम डाउन। अपन डाउट सेशन जब आपका शेड्यूल होगा उसमें आप वो सारे क्वेश्चंस ला सकते हैं। फिलहाल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आई सपोज, तो मैं उस दिन भी ये पूरा डॉक्यूमेंट लेके साथ में ही होगा, या आप लोगों को भी सेंड कर देंगे, आज ही अपलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, अगर कोई डायग्राम बनाना चाहो या कोई फिगर आपको अच्छा लग रहा हो आप उसको देख सकते हो। कोई डाउट हो तो लिख के रखना, डाउट क्लास में उसको पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट मी फर्स्ट चेक आउट इफ देयर आर एनी वर्थवाइल क्वेश्चंस एड्रेसिंग राइट नाउ। फ्रीक्स ऑफ नेचर हॉरर कॉमेडी, या आई पुट अ मूवी ऑन डाउनलोड, वो हो गई थी। थैंक यू बेटा। आज बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। हाँ, मेरे फोन में भी प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई में भी प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो। वॉइस ब्रेक बार बार। ओके बच्चों, सी यू इन द डाउट क्लास देन। कोई ऐसा क्वेश्चन अभी किसी ने नहीं पूछा है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डक्ट ऑफ सैंटोरिनी एक ने पूछा है। डक्ट ऑफ सैंटोरिनी बेटा वो डक्ट होता है जो, कब बोला ना, पैरेलली निकलता है। डक्ट ऑफ विल्सन से कभी कभी एक अलग, बजाय बाइल डक्ट से मिलने के एक अलग डक्ट निकल के जाकर के पैरेलली खुल जाता है डियोडनम में, उसे डक्ट ऑफ सैंटोरिनी कहते हैं। ठीक है, और कोई सवाल हो तो पूछ लो, उसके बाद फिर बाकी आप लोग डाउट क्लास में पूछना। भी तुम्हारे अगली क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, 10:33 हो चुके हैं, वहीं पे बता देंगे। डक्ट ऑफ बेलिनी भी वहीं पे बता देंगे। ठीक है, तभी आना। चलो टेक केयर, बाय बाय। पैरोटिड ग्लैंड तो बताया था।